Hello children, how are you? I hope you are fit and fine at your home. Today we are going to take another topic of chapter 4, that is court nobility and revenue system. Means how the kings and sultans handle their administration and political arrangement and land revenue sources and other taxes and other reforms, how they manage their whole sultanate. Today we will cover this topic, and the second thing is that I'm giving motivational e-certificate to those students who are doing their regular work and sending every teacher regularly. So all of you children, I'm requesting, just do your work in a time and submit to the teacher if you want that motivational certificate and all good vibes from the teachers. So without getting any time, let's get started. Okay children, already we learned about Delhi Sultanate, the period between 1206 to 1526. As we covered the slave dynasty, and second one Khalji dynasty, and third Tughlaq dynasty, and Sayyid dynasty, and Lodi dynasty. Now in the last section of this chapter, we will know about the administration of all these sultans. How will they manage their administration, how the political arrangement was there, how can control the military system, and how they collect revenue systems and the income, and how they manage about the common people and the court and nobility. We will read the last section of this chapter. So children, development of political institution during the Sultanate period means Sultan was despot. Despot means Nirankush Shashak. He ruled with the help of nobles. So with the help of nobles means how he managed the law and the order in their reign. We will read about these things. Development and political institution during the sultans. So okay, the law was based on the Islamic tradition, means all they were Muslims, so obviously the Muslim religion was the superior, and qazis, ulemas had a great hand of the administration. Qazi and the ulema is a religious post, higher post, and they always the ruler follow that qazis and ulemas tradition and the rules. The power of the sultans was based on the military force. Obviously they controlled by every ruler controlled by the area and their reign by the military force. Without military, the ruler is nothing. He administrated all the functions of the government, and the government was run under the various department. Means several departments were there. Each department was supervised by the ministers or high officers. अब उन हाई ऑफिसर्स के क्या पोस्ट थे और वो कैसे काम करते थे हम इसमें पढ़ेंगे. वज़ीर होता था चीफ मिनिस्टर, हेड ऑफ ए दीवान वजारत. इसको ये उर्दू, क्योंकि ये अरबी और उर्दू और ये इसी अरेबिक लैंग्वेज में थे, इसलिए इनके नाम थोड़े इसमें उर्दू लैंग्वेज से मिलते जुलते हैं. हिंदू में तो अपने को वो कहेंगे प्रधानमंत्री कहेंगे वज़ीर को, है ना. काजी होता था चीफ जस्टिस, जो कि रिलीजियस में हायर पोस्ट मानी जाती थी. देन दीवान इंशा लुक्ड आफ्टर द स्टेट कॉरेस्पॉन्डेंस को वो देखता था. एंड दीवान रिसालत लुक्ड आफ्टर रिलीजियस मैटर, वो रिलीजियस मैटर को देखता था. वली और मुफ्ती प्रोमिनेंस ऑफ द सेंटर के हेड होते थे. वली और मुफ्ती मीन सेंटर होता था, उसके बाद सब डिविडेशन होता था. जैसे अपने यहाँ पे दिल्ली पहले सेंट्रल स्टेट है, फिर स्टेट गवर्नमेंट है, और स्टेट गवर्नमेंट के बाद सिटी और रूरल, तीन तरह की ये चलता है ना, अपन से इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं. इसी तरीके से सेंटर डिवाइडेड इनटू शिक्स एंड परगनाज. सेंटर के बाद छोटे छोटे और परगनाज बने होते थे, छोटे छोटे जैसे स्टेट्स हैं. पहले हमारा पूरा ऑल ओवर कंट्री है, कंट्री के बाद हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट आती है, उसके बाद स्टेट्स आते हैं हमारे 29 स्टेट्स. तो उन 29 स्टेट्स को पुराने टाइम में हम क्या कह सकते हैं, परगनाज. और परगना के हेड को क्या कहा जाता था, हेड ऑफ द परगना वॉज अमील कहते थे. तो इस तरीके से ये इनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स थे. मिलिट्री कंट्रोल, ऑब्वियसली द वेरी एक्सटेंस ऑफ द सुल्तान्स डिपेंडेंट ऑन द एफिशिएंसी ऑफ हिज आर्मी, and the sultans of Delhi had conquered warriors. If they checked the foreign invasion, it was with the help of their states. So military is the very important part of their reign. It was again necessary for the surprising rebellion nobles and the governors. Without strong military force, they could not think of the existing. So military force is the most powerful weapons of the any ruler. So if they maintain law and order in their state, they need military. And if they want to attack the invention and another country, they want military.
If they want the repress their revolt or to shut down their rebellions, so they need military. So military force was again necessary for suppressing the rebellious and nobles and governors. Without strong military force they could not think about existing. So military arrangement was also mandatory and strong on the time of Delhi Sultanate. Relationship between the rulers. Now, what was the relation of the sultans with the others ruler? The Delhi Sultanates tried to maintain cordial relation with the Muslim rulers, but such relation were more superficial than the real. So they tried to maintain cordial relation, but their relation was very fake, not good. Relation were more superficial than the real. And for plunder and expansion of the territories, they would undertake campaigning against the Hindu rulers. और अपने इसके मुस्लिम जो रूलर होगा उससे तो बनाएगा, लेकिन अपने राज्यों को बढ़ाने के लिए, एक्सपेंशन के लिए और रूलिंग के लिए और ऑब्वियसली वेल्थ के लिए, है ना, वो क्या करते थे, दूसरों पे, हिंदू राजा पे अटैक करते रहते थे. So they would undertake a campaign against the Hindu rulers to get the sympathy and support to the Muslim population. They would say that Quran and Sharia Islamic law होता है provided by the basis for the enforcing Islamic ruler over the independent Hindu rulers. Otherwise their own position of the Delhi was uncertain. So it was the relation between the other ruler not good. They need only empire and wealth. नाउ वी हैव कोर्ट, नोबिलिटी एंड लॉर्ड. कोर्ट कैसा होता था? कोर्ट मतलब अपन आज के टाइम में हम कोर्ट किसे कहेंगे, जिसमें हम केस बनता है, जस्टिस होती है, कोई केस हम कोई फेक होता है, हमारे साथ फ्रॉड करता है तो हम कोर्ट में जाते हैं. लेकिन मोनार्क सिस्टम में कोर्ट क्या होता था, जहाँ पे राजा अपने नोबिलिटी के साथ, नोबल्स के साथ, अपने कोर्टियर के साथ बैठ के आम जनताओं की बातें सुनता था और फिर जजमेंट करता था. तो उस टाइम वो कोर्ट वो था. नोबिलिटी एंड द लैंड, क्या सिस्टम था कोर्ट का उसका? लेट्स in order to carry out the day-to-day business and to receive the visitors, court was necessary. Delhi sultans had maintained splendid court of their own. The princes however given front seat. Princes को हमेशा क्या front seat मिलती थी. The royal court was generally a part of royal place. Sultans like Balban and had forbidden the countries to even laugh in the court. Even Balban इतना strong डिटर्मिनेशन का और स्ट्रॉन्ग उसका कोर्ट अरेंजमेंट था कि वहाँ पे हंसना भी मना ही होती थी. वहाँ पे कोई बलबल की कोर्ट में कोई हंस नहीं सकता था. तो हमेशा कोर्ट हमेशा उनके एक स्प्लेंडेड पार्ट था, हमेशा एक रॉयल पार्ट होता था. बहुत सारे लोग तो जैसे शाहजहाँ का कोर्ट बहुत अच्छा होता था, रॉयल एकदम भव्य, है ना. और कोर्ट में कॉमन लोगों से बातें सुनी जाती थी और जो कल्प्रिट है या जो कोई किसी ने कोई अपराध किया था तो उसको सज़ा भी कोर्ट में सुनाई जाती थी, है ना. ये सब होता था कोर्ट में इसका रोल. एंड ही देन when the court was at that time, court was very usually big hall supported by the polished and wooden pillars and decorated with all kinds of costly material and furnishing. The head of the different departments were always present there. हमेशा एकदम एक तरह से कोर्ट लगता था जिसमें सारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट प्रेजेंट रहते थे. जैसे वज़ीर हो गया, सेनापति हो गया, काजी हो गया, है ना, और स्टेट का अमील हो गया, परगना का हेड हो गया, ये सब वहाँ प्रेजेंट रहते थे राजा के अंदर. नोबिलिटी. दिल्ली सुल्तान्स वर डिस्पोज्ड मीन्स निरंकुश शासक होता है. देयर वर नो पॉपुलर असेंबलीज टू हेल्प देम. उनकी जो नोबिलिटी थी, नोबल्स जो थे, वो हमेशा मौका परस्त थे. दिल्ली सुल्तान का कोई ऐसा नहीं था हमेशा कोई वीक रूलर को देखे हमेशा वो दबाने की, थ्रोन लेने की सोचते थे. तो मोस्ट ऑफ दोज नोबल्स बिलोंग टू द तुर्किश अफगान फैमिली विच हैड सेटल्ड इन इंडिया. इसलिए सुल्तान अपने दरबार में हिंदू रूलर्स और हिंदू लोगों को रखते ही नहीं थे. वो मुस्लिम फैमिली और अफगानी फैमिली को ही लेके आते थे, उन्हीं को ही कोर्ट में अपनी पोस्ट या जगह देते थे. Most of those officers formed a class of nobility. Instead of paying salary by cash, most of the Delhi sultans gave them जागीर. और बजाय सैलरी कैश देने के वो क्या करते थे, जागीर देते थे. जागीर अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, एक लैंड का हिस्सा, मतलब बहुत सारे विलेज दे दिए या कोई खेत को एकड़ ज़मीन दे दी या मंदिर में दे दिया या ऐसा कुछ, मतलब ज़मीन देते थे वो लोग, जागीर कहा जाते थे. और जागीर का जो ऑनर होता था वो क्या कहलाता था, जागीरदार. फ्रॉम द रेवेन्यू विच दे कलेक्टेड फ्रॉम सच लैंड्स दे कैप द सर्टेन अमाउंट एज देयर सैलरी एंड अनदर सम टू मेंटेन सोल्जर्स फॉर द सुल्तान्स. और उसके रेवेन्यू से जो इनकम आती थी उसमें कुछ अमाउंट अपने पास रखते थे एज ए सैलरी और कुछ सोल्जर्स के उसके आर्मी को मेंटेन करने में लगाते थे.
देन नेक्स्ट वी हैव रिसोर्सेज एंड मोबिलाइजेशन, वो किससे इनकम इकट्ठा करते थे और क्या सिस्टम था उनके, है ना। तो ये था द सुल्तान्स टुक सेवरल मेजर्स टू इंक्रीज देयर रेवेन्यू रिसोर्सेज फॉलोइंग देयर चीफ रिसोर्सेज आर देयर फॉर द रेवेन्यू। फर्स्ट वी हैव द खिराज और द लैंड रेवेन्यू। खिराज एक टैक्स होता था या लैंड रेवेन्यू होता था जो लिया जाता था। लैंड रेवेन्यू वॉज ए मेजर सोर्सेज ऑफ देयर इनकम, तो वो जो टैक्स लिया जाता था उसको खिराज कहा जाता था। नेक्स्ट वी हैव द जजिया टैक्स। जजिया टैक्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इट वॉज इम्पोज्ड ओनली ऑन द नॉन मुस्लिम। इट इज़ बिलीव दैट चिल्ड्रन वुमेन एंड अफेयर्स वर exempt from this payment. It was realized rate 10 and 40 टकास डिपेंडिंग ऑन द पेयर्स इनकम। इनकम की पे इनकमर जो करता था पे उस जैसे उनकी इनकम होती थी उस हिसाब से वो पे टैक्स लगाते थे। Then the octroi duty. It was released on the exchange of transportation and commercial goods, import tax and on the goods import from the countries. वो taxes था, एक ट्रांसपोर्टेशन टाइप चार्ज हो गया, गाड़ियाँ इधर से उधर या एनिमल से एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हैं तो वो टैक्स ड्यूटी ली जाती थी। देन वी हैव जकात टैक्स। इट वॉज ए टैक्स दैट पेड बाय द मुस्लिम्स देते थे ये वाला टैक्स। सो अदर सोर्सेज ऑफ द इनकम इज ऑल्सो देयर। Income includes state share and booty, which was calculated, gifts and tributes and subordinate other income sources with a rulers के कोर्ट और पॉलिटिकल और आर्मी को मैनेज करने के लिए। तो ये तो सिस्टम था बेटा कि ये जो 5 डायनेस्टीज थी ये कैसे इतनी वास्ट एम्पायर को मैनेज करते थे, उनकी पॉलिटिकल अरेंजमेंट कैसे होते थे, उनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कैसे होता था और वो लोगों से किस तरह के टैक्सेस लेते थे और उनकी कोर्ट कैसे लगता था। तो ये अपन ने लास्ट जो टॉपिक्स हैं वो कवर कर लिए। अब ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ कम टू द इन द होमवर्क सेक्शन। फर्स्ट वी हैव गिव रीजन। मोहम्मद बिन तुगलक शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी because Delhi was invaded repeatedly by the Mongols. So to prevent the Mongols attack, he shifted his capital from Delhi to Devgiri. But his plan was failed. The Sultanate saw its downfall. तो बहुत सारे रीज़न है उसे डाउनफॉल के, लेकिन दो ही गिव रीज़न शॉर्ट होता है तो मैं दो ही रीज़न दे रही हूँ। बिकॉज ऑफ वीक रूलर एंड वास्ट एम्पायर एंड देर इज़ नो लॉ ऑफ सक्सेशन। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट वी हैव लॉन्ग आंसर। हाउ डिड दिल्ली सुल्तान्स मोबिलाइज देयर रेवेन्यू सोर्सेज। रेवेन्यू सोर्सेज को वो कैसे मैनेज करते थे। द सुल्तान्स मोबिलाइज एंड रेवेन्यू रिसोर्सेज वर देयर। लास्ट चैप्टर में मैंने अभी कंप्लीट किया। ये 4 टॉपिक है आपके, द खिराज, द जजिया टैक्स, द जकात टैक्स एंड द ऑक्ट्राई ड्यूटी। खिराज लैंड रेवेन्यू टैक्स था जो टोटल इनकम से लिया जाता था। जजिया नॉन मुस्लिम को से लेते थे। जकात मुस्लिम रूलर से मुस्लिम पीपल से लेते थे। ऑक्ट्रॉय ड्यूटी इट वाज रियलाइज्ड ऑन द एक्सचेंज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, और ये ट्रांसपोर्टेशन ड्यूटी थी एक तरह से, जो अपन प्रेजेंट में कह सकते हैं अपन जैसे टोल देते हैं उस तरीके से ये थी। So I'm requesting again and again all of you children, just submit your work on a time and do your preparation for the midterm exam, because date sheet is revealed in the group, and I'm asking those students who are not regularly send their work, just please send it so that we will give the motivational certificate for the good and positive motivation. Thank you children, have a nice day, and I hope you are doing well in SS.